أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق الله العظيم. سورہ آل عمران ترجمہ تفسیر چھٹا رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر پہنچاؤں گا، یعنی تمہیں کفار قتل نہ کر سکیں گے، مدارک وغیرہ، اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، آسمان پر بزرگی اور کرامت کا محل اور فرشتوں کے رہنے کی جگہ میں بنا موت کے. حدیث شریف ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ میری امت پر خلیفہ ہو کر اتریں گے، صلیب توڑیں گے، سوروں کو قتل کریں گے، 40 سال رہیں گے، نکاح فرمائیں گے، اولاد ہوگی، پھر آپ کا وصال یعنی دیہانت ہوگا. وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں اور آخرت عیسیٰ اور بیچ میں میرے گھر والوں میں سے. مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں پوروی مینارے پر اتریں گے. یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے میں دفن ہوں گے اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے ماننے والوں کو یعنی مسلمانوں کو جو آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہیں قیامت تک تیرا انکار کرنے والوں پر جو یہودی ہے غلبہ آدھپتیہ دوں گا. پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو. تو وہ جو کافر ہوئے میں انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب کروں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ ان کا نیک انہیں بھرپور دے گا اور ظالم اللہ کو نہیں بھاتے. یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں اور حکمت بودھ والی نصیحت.
ईसा की कहावत अल्लाह के नजदीक आदम की तरह है। नजरान के ईसाइयों का एक प्रतिनिधि मंडल सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और वो लोग हुजूर से कहने लगे, आप गुमान करते हैं कि ईसा अल्लाह के बंदे हैं? फरमाया, हाँ, उसके बंदे और उसके रसूल हैं और उसके कलीमे जो कुंवारी बुतूल अजरा की तरफ भेजे गए। ईसाई यह सुनकर बहुत गुस्से में आए और कहने लगे, ऐ मुहम्मद, क्या तुमने कभी बेबाक का इंसान देखा है? इससे उनका मतलब यह था कि वह खुदा के बेटे हैं, अल्लाह की पनाह। इस पर यह आयत उतरी और यह बताया गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बगैर बाप ही के हुए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो माँ और आप दोनों के बगैर मिट्टी से पैदा किए गए। तो जब उन्हें अल्लाह का पैदा किया हुआ मानते हो तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैदा किया हुआ और उसका बंदा मानने में क्या हिचकिचाहट और आश्चर्य है? उसे मनी से बनाया फिर फरमाया हो जा, वह फौरन हो जाता है। ऐ सुनने वाले, यह तेरे रब की तरफ से हक है, तू शक वालों में न होना। फिर ऐ महबूब, जो तुमसे ईसा के बारे में हुज्जत बहस करें बाद इसके कि तुम्हें इल्म आ चुका, तो उनसे फरमा दो, आओ हम बुलाएं अपने बेटे और तुम्हारे बेटे और अपनी औरतों और तुम्हारी औरतों और अपनी जानें और तुम्हारी जानें, फिर मुबाहिला करें तो झूठों पर अल्लाह की लानत डालें। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के ईसाइयों को यह आयत पढ़कर सुनाई और मुबाहिले की दावत दी तो कहने लगे कि हम गौर और सलाह कर लें, कल आपको जवाब देंगे। जब वो जमा हुए तो उन्होंने अपने सबसे बड़े आलिम और सलाहकार व्यक्ति आकिब से कहा, ए अब्दुल मसीह, आपकी क्या राय है? उसने कहा, तुम पहचान चुके हो कि मोहम्मद अल्लाह के भेजे हुए रसूल जरूर हैं। अगर तुमने उनसे मुबाहिला किया तो सब हलाक हो जाओगे। अब अगर ईसाइयत पर कायम रहना चाहते हो तो उन्हें छोड़ो और घर लौट चलो। यह सलाह होने के बाद वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने देखा कि हुजूर की गोद में तो इमाम हुसैन हैं और दस्ते मुबारक में हसन का हाथ और फातिमा और अली हुजूर के पीछे हैं रदियल्लाहु अन्हुम, और हुजूर उन सब से फरमा रहे हैं कि जब मैं दुआ करूं तो तुम सब आमीन कहना। नजरान के सबसे बड़े आलिम पादरी ने जब इन हजरात को देखा तो कहने लगा कि ए ईसाइयों, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये लोग अल्लाह से पहाड़ को हटाने की दुआ करें तो अल्लाह पहाड़ को हटा दे। इनसे मुबाहिला न करना, हलाक हो जाओगे और कयामत तक धरती पर कोई ईसाई बाकी न रहेगा। यह सुनकर ईसाइयों ने हुजूर की खिदमत में अर्ज किया कि मुबाहिले की तो हमारी राय नहीं है। अंत में उन्होंने जिजिया देना मंजूर किया मगर मुबाहिले के लिए तैयार न हुए। सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है। नजरान वालों पर अजाब करीब ही आ चुका था। अगर वो मुबाहिला करते तो बंदरों और सुअरों की सूरत में बिगाड़ दिए जाते और जंगल आग से भड़क उठता और नजरान और वहाँ की निवासी चिड़िया तक नाबूद हो जाती और 1 साल के अरसे में सारे ईसाई हलाक हो जाते। यही बेशक सच्चा बयान है कि हजरत ईसा अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं और उनका वह हाल है जो ऊपर बयान हो चुका, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद पूजनीय नहीं। इसमें ईसाइयों का भी रद है और सारे मुशरिकों का भी, और बेशक अल्लाह ही गालिब है, हिकमत वाला। फिर अगर वो मुंह फेरें तो अल्लाह फसादियों को जानता है। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़वजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे, हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।